Means how what from where the things actually starts in Salesforce, right? Means how Salesforce Yes. platform comes in picture. So assume like you and me are a company, okay, and Yes. means you are a customer and I am a particular company, and if I have to launch any product, right? So what are the things which I have to do first? First of all, I have to do the marketing of that particular product, right? So when I have done the marketing, then from the marketing, the different people will come in, like they will say like, okay, I am interested in your product. Okay, so basically when they are coming to inquiry to inquire about what your product is and tell me more about your product. So when you will come and to me like Subodh, tell me about the product, then I will start telling like my product is doing this is doing that. Purchase it. It's being beneficial for you, right? So at that time you are a kind of lead for me, right? So forget about the Salesforce term lead and everything. We are just talking about in general, okay? For any company, for any new company, whenever they are launching any product, what are the steps that are involved? So let's say uh, my product is getting launched. I'm running some marketing, right? And you come in and ask like, I'm little bit interested in your product. Tell me more about it. Then I gave you 10, 20 points like these are the qualities of my product. And you said, okay, I will think and then I will let you know. Okay. Then after 2 days, you called me and said, hey, I'm ready to buy a product and I am interested in that. Okay. So once, you have done all the formalities, all the paperwork. So now you are the customer of my company, right? Means you have purchased my product. So you are now my customer, right? Yes. Now, once you are the customer, then I have to provide you the service also, right? Because now the sales part is done, right? Means Yes. uh, I have sold my product. Now you are my customer. Now comes in the service thing. So service means the service could be of anything. Means you are facing any issue with my product, or maybe you want the renewal of the product, or maybe you want to upgrade the product, right? So when you start requesting your own issues or you start requesting, your additional features in that particular product, at that time, uh, means we are actually kind of providing a service to you, and then we are resolving that service in some particular time, and then we are giving you some link to share your feedback like the normal way whenever you go for any shopping, right? Once you've done the shopping, there you receive some kind of link to fill the feedback form or something so that you can provide feedback whatever the purchase you have done, like is it right or wrong, right? So this was the general scenario. Now assume the same thing in terms of the Salesforce. So my company is launching a product, right? And so that product, just assume now in Salesforce we have a standard product. We have a standard object that is product, right? Now, when I said you are now my lead, means you are now interested in my product, right? So you are actually a lead for me in Salesforce. So when I'm saying like all the things I'm managing, all these means product marketing things, then you are coming in, customer is coming in and they are getting converted as a permanent customer, and then we are providing more services to them, right? We are offering more services to them. So now just the same thing, just link it with the Salesforce. Now I have launched my product, I am running doing some marketing. So in Salesforce term, where actually we do the marketing, right? So we do the marketing. एक सेकेंड ले लीजिए, हाँ पूरा ही लगता है. Yeah, Keshav, sorry about that. Yeah, so I was saying,
Now let's assume the whole scenario in terms of the Salesforce. Like we are setting up the product, okay, then the company is running a campaign, which again is a standard object. In campaign, we have some members, right? It's those who are actually um, the staff who are taking care of all these products. They are actually the campaign members. Now, when you come in, you are actually lead. And now, all these objects I'm talking about in the terms of the Salesforce, right? Then, once you are interested, then you are converted into the account. So, in Salesforce, whenever a lead is converted, a new contact record, account record is created, right? And opportunity is also created, but it's not mandatory to create the opportunity. And so once the So what is the difference between lead and opportunity? yeah, so lead is something like you are interested in me, right? In my product, so you are a lead. Means you are Yes, interested, but you haven't purchased yet. Okay, but yes. once you purchase my product, then you are not lead. You are customer. It's like Salesforce, we group the customer in the form of accounts or in the contact, because now you'll think like there is only one lead where we are actually storing some information like first name, last name, phone, email. Few other custom fields are created based on the business requirement, let's say. Okay, so all these this whole flow when the lead is From and Mhm. uh, where leads comes. So lead is coming like you are the lead. अच्छा, चलो इसको एक बार है ना ऐसे समझते हैं। Yes, जिस लैंग्वेज में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, आई थिंक इसमें ज्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊँ आपको और समझ भी पाओगे। देखिए, सपोज आपको मोबाइल खरीदना है, आप बस एक जनरल समझो, ठीक है, कि yes, केशव को मोबाइल खरीदना है। केशव गया एक शॉप पे और उससे बोला कि मुझे ये मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो ठीक है। वो जो शॉप वाला बंदा है, आप अभी शॉप पे कैसे गए? या तो आप रोज उसके सामने से गुजरते होगे, राइट, या फिर कहीं पेपर में ऐड पढ़ा होगा, तो आपको पता चला कि हाँ यहाँ पे एक शॉप खुली है जहाँ पे मोबाइल मिलता है, तो मैं जाता हूँ वहाँ पे मोबाइल देखता हूँ। ओके, ओके। तो जब आप गए शॉप पे, तो वो जो मोबाइल वाला है ना, वो उसने कैंपेन चला रखा है। कैंपेन एज एन कि उसने अपना पैम्पलेट छपवा दिया, न्यूज़पेपर्स में डलवा दिया, अलग अलग जगह एडवर्टाइजमेंट करवा दिया कि मेरी यहाँ पे शॉप खुली है और हम ये चीजें बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, जो भी चीज बेच रहे हैं। ओके, ओके। मार्केटिंग को कैंपेन बोलते हैं। हाँ, तो उसने जो मार्केटिंग की है, उसको हम सेल्सफोर्स टर्म में बोलते हैं कैंपेन। वो हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है। ओके। ठीक है। अच्छा, अभी वो जो दुकान वाला है, उस दुकान से जो प्रोडक्ट वो शॉप को खरीदा है ना, तो उसके कुछ हेल्पर्स भी होंगे, कुछ एम्प्लॉयज भी होंगे जिनके साथ वो जो हेल्प कर रहे होंगे उसके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, राइट। यस। तो उनको बोलते हैं हम कैंपेन मेंबर्स। ओके। ठीक है, मैं एक बार ना अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ साथ में। सेल्सफोर्स का स्क्रीन भी देखते जाएंगे ना, तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, हाँ। कैंपेन मेंबर्स एज ए एम्प्लॉय होते हैं वो सब। वो एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, हाँ, मोस्टली वो इंटरनल एम्प्लॉयज ही होते हैं हमारे, क्योंकि मीन्स कंपनी से रिलेटेड होते हैं। हाँ, वो कंपनी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि कोई भी आपकी कंपनी से रिलेटेड रहेगा तभी तो वो आपके लिए कुछ काम करेगा, राइट। ओके, ओके। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। शेयर। ओके। ये चीजें बस मैंने काम की, लेकिन ये इतना पता नहीं कि ये नहीं नहीं, कोई ना। बस अभी पता जब है कि बस ये ऑब्जेक्ट बनाना है, ऐसा फंक्शनलिटी बनाना है बस।
आपका कौन सा है सैंडबॉक्स? लास्ट में क्या है, 02 है ना शायद, कि 05 है? 005। 05 है। कोई ना, प्रेशर लेके मत पढ़ना, कोई भी छोटी से छोटी चीज समझ में नहीं आती है ना तो तुरंत पूछना, मतलब बीच में टोकना, ठीक है? कभी ओके ओके। स्किप मत करना, क्योंकि किसी चीज के आप पैसे दे रहे हो सीखने के लिए तो बैठे हो, मेन पैसा नहीं है, हाँ मेन हाँ है कि हाँ। आप सीखने के लिए आए हो, right? यस यस। हम्म। हमारे साइड बॉक्स लॉन्ग को मेरा यूज है, तो यहाँ से बेसिकली इसमें शायद ठीक है, तो हमने यहाँ पे आप देखोगे कि एक टेस्ट एक कैंपेन बना दिया, ठीक है? ठीक है। अभी इस कैंपेन में हमारे पास जैसे कुछ मेंबर्स हो गए, यस। तो मीन्स जो शॉप के बंदे हो गए, अच्छा अब वो शॉप के बंदे क्या हो सकते, कौन कौन हो सकता है, ठीक है? अब उस कैंपेन में कितने बंदे हैं, जैसे मान लो कि हमारा ये लीड ऐड कर लिया, या फिर हमने यहाँ से कोई कांटेक्ट ऐड कर लिया, मीन्स कि वो जो बंदे हैं वो हमारे इस कैंपेन से जुड़े हुए हैं, ठीक है? हम्म। आइदर एज ए लीड, आइदर एज ए कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब कि जो खुद के बंदे हो गए हमारे, ठीक है? या फिर लीड भी हो सकते हैं जो लीड उस कैंपेन के थ्रू आए हैं, ओके। राइट? सपोज आपने कि इसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन डाल दी कि हमारे कैंपेन में ये प्रोडक्ट है, सारा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन डाल दिए, कैंपेन का स्टार्ट डेट, कब से कब तक शुरू होगा, ठीक है? आपने कुछ एक्सपेक्ट कर लिया कि हमारे पास कुछ रेवेन्यू इतना, हम मान के चल रहे हैं कि इतना हमारा रेवेन्यू आएगा, राइट? हमने ओके कभी बजट कर लिया कि इतना शायद हमारा टोटल बजट होगा, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी हमारी लगी है, मीन्स सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली यूजर स्टोर कर रहा है अपने उस कैंपेन से रिलेटेड, राइट? अच्छा, ओके। अब उस कैंपेन से सपोज हमारे पास कोई लीड है, मैं एक लीड पे जाता हूँ, ये बस अभी ये सारी चीजें कहानी की तरह बस आप देखते जाइए कि ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऐसे होती हैं, अभी के लिए भूल जाइए कि आप पोस्ट डेवलपर हैं, आपको चीजें आ गई, ठीक है? ओके। इसमें प्रेस नाम से बना रही हूँ, और इसको अभी जो हमारा कैंपेन था ये वाला, इसमें अब सपोज ये कैंपेन चला, कैंपेन से हमारे पास सिस्टम में एक लीड आई है, ठीक है? हमने इसको चूज कर लिया, ये इस कैंपेन से आई है, नंबर स्टेटस अभी क्या क्या है सेंड है, मीन्स हमने कुछ कुछ अभी इसको इनवाइट भेजा है, राइट? मीन्स फीडबैक लेने के लिए कि हाँ सर बताइए आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है कि क्या है। तो उसके पास, उस लीड के पास एक ईमेल नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने शो कर रहे हैं, जस्ट वन मेंबर है, ठीक है? हम इस लीड पे गए, आप यहाँ पे देखिए कन्वर्ट बटन, सपोज लेट्स से कि ये जो लीड है इसने बोला कि हाँ ठीक है एवरीथिंग गुड, मैंने पेमेंट कर दी। एडमिन क्या करेगा सेल्स फोर्स में, वो जाके इसको कन्वर्ट पे क्लिक करेगा, ठीक है? ये हम कस्टम भी कर सकते हैं, बट अभी हम सब स्टैंडर्ड देखते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है? तो अकाउंट है तो हम क्या क्या चीजें क्रिएट कर सकते हैं जो मैंडेटरी है, पहला तो अकाउंट जब भी कोई लीड कन्वर्ट होती है सिस्टम में, तो मीन्स ये कस्टमर हमारा तैयार हो गया है, राइट? जो कि अभी कन्वर्ट कन्वर्ट करने का मतलब है उसने मतलब कन्वर्ट करने का मतलब देखिए, परचेज कर रहा है वो। हाँ नहीं, आपने परचेज कर लिया है, ठीक है? कर आपने लिया है। पैसा दे दिया, आप लीड थे पहले, आपने दुकान पे पैसा दे दिया, मोबाइल खरीद लिया, ठीक है? ओ, अब जब आपने जैसे ही खरीद लिया, अब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सामने वाले जो शॉप है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई, क्योंकि उसने आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगी थी परचेज करने के टाइम पे, राइट? ओके। अब आपकी इंफॉर्मेशन उसके पास स्टोर हो गई है। अब आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है उस फोन में, तो सबसे पहले आप उस दुकान वाले को पकड़ोगे, राइट? कि भाई तुमने कैसा फोन दिया मुझे, यस यस। ठीक है? तो अब उस
दुकान वाला जो कि अब आप उसके कस्टमर बन चुके हैं, ठीक है? अब आप उसके लीड नहीं रहे, तो अब भाई ये तो चलो हम लोग एक मोबाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है, छोटी सी कंपनी। मान लीजिए इसी चीज को बहुत बड़े लेवल पे आप ऐसे समझिए, ठीक है? तो अब एक ही जगह पे अगर आप अपने सारे कस्टमर को भी स्टोर करोगे और जो आने वाले कस्टमर हैं उनको भी स्टोर करोगे, मीन्स आप अपने कस्टमर का इंफॉर्मेशन लीड में ही रहने दोगे जो कस्टमर बन चुके हैं, ठीक है? और जो नए कस्टमर आ रहे हैं आप उनका इंफॉर्मेशन भी लीड में स्टोर कर रहे हो। तो कंफ्यूजन क्या होगा, मीन्स इतने सारे बंदे हैं, यूजर को नहीं पता चल पाएगा कि कौन से उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, कौन से उसके होने वाले कस्टमर है, राइट? तो इसकी वजह Yes. से बिजनेस को सेग्रीगेट करने के लिए हमने सेल्सफोर्स से कंसेप्ट निकाला कि हम कस्टमर बना देते हैं उनको, और उनको एक अलग डिवीजन में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि उनके लिए फिर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीजें अलग होंगी। जो भी कस्टमर बने नहीं है उनके लिए चीजें अलग होंगी, राइट? Okay. तो इसकी वजह से मान लीजिए कि लीड जो है वो अब कन्वर्ट होने को रेडी हो चुकी है, सारा पेमेंट वेमेंट कर रही है, उसने प्रोडक्ट चूज कर लिया आपने, ठीक? एडमिन क्या करेगा, सिस्टम में उस लीड के रिकॉर्ड पे जाएगा, जो कन्वर्ट बटन है उस पर क्लिक करेगा, तो ये एक स्क्रीन पर क्या है, मीन्स वो एक अकाउंट क्रिएट करने जा रहा है कि अब ये लीड लीड ना होकर के अभी कस्टमर बन चुका है, राइट? तो अब Yes. वो जो कस्टमर है हो सकता हो कि वो कस्टमर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो, है ना? या फिर मान लो कि आप हो, आप किसी स्कूल से जुड़े हो, या फिर आप अपना पर्सनल कुछ काम कर रहे हो, या फिर पर्सनल बिजनेस कर रहे हो। Hmm. तो उस कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अकाउंट ऑब्जेक्ट होता है, एंड फिर जो आपकी पर्सनल डिटेल है, बंदा जो है, जो इंडिविजुअल बंदा है, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हमारे कॉन्टैक्ट। तो सपोज आपने बोला कि आप ठीक है, आप फला जगह काम करते हो, ठीक है, यहाँ यहाँ काम करते हो, जयपुर में रहते हो, ऐसे ऐसे करते हैं। उसने क्या किया, एक अकाउंट बना दिया उस एरिया के लिए कि ये इसमें वो सारे बंदे रहेंगे जो इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में आते हैं, या फिर लेट्स से इस पर्टिकुलर लोकेशन के बंदे हैं, ठीक? तो उसने अकाउंट बना लिया। अब आपकी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करानी है अपने को, तो यहाँ पे हमने फिर कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन डाल दी। अब लीड में जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा वही, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारे कॉन्टैक्ट का भी होगा, मेक सेंस, राइट? Yes. और जो अकाउंट है, अब वो अकाउंट का नाम आप वो देते हैं जो कंपनी का नाम फिल किया होता है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे डिटेल्स में हमने यहाँ पे कंपनी डाला था टेस्ट करके, सपोज मैं टेस्ट करा देता हूँ, फर्स्ट नेम में डाल दिया लेट्स से केशव, ठीक है? तो अभी जब मैं इसे कन्वर्ट करने जाऊंगा तो अकाउंट नेम होगा इस कंपनी का नाम, ये स्टैंडर्ड होता है, आप इसको चेंज कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हैं इसको। अब क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया तो केशव शर्मा नाम है, राइट? फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने फिल किया था लीव में, तो ये ऑटो पॉपुलेट हो गया, सैलूटेशन नहीं फिल किया तो नहीं पॉपुलेट हो गया। अभी क्या है, अपॉर्चुनिटी। अब ये है डोंट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी अपॉन कन्वर्जन। तो अपॉर्चुनिटी जनरली देख, अलग अलग कस्टमर के अलग अलग तरीके होते हैं अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट की यूज करते हैं, बट जो जनरल जो होता है अपॉर्चुनिटी वो बेसिकली होता है कि प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन, जो जो प्रोडक्ट आपने खरीदी है उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन ली, राइट? तो अभी जब आप नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पे गए तो आप लीड हो, जब जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीद लिया, तो उनके सिस्टम में, उनके बैकएंड सिस्टम में आप लीड से अकाउंट में कन्वर्ट हो चुके हैं, और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई कॉन्टैक्ट। और जो आपकी पेमेंट इंफॉर्मेशन है कि क्या पेमेंट किया है आपने और किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट पेमेंट किया है, मीन्स मोबाइल खरीदा है, नेटफ्लिक्स से सब्सक्रिप्शन लिया है, वो इंफॉर्मेशन सारी स्टोर होती है हमारी अपॉर्चुनिटी, Okay. ठीक है? अब अपॉर्चुनिटी में बहुत सारी चीजें होती हैं कि कोई बिजनेस अगर क्लोज करना है या फिर कोई डील क्लोज करनी है उस सेशन के लिए, तो वो इंफॉर्मेशन भी हम अपॉर्चुनिटी में स्टोर करते हैं। या फिर अपॉर्चुनिटी जनरली यूज होता है जब भी कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है किसी कंपनी, ठीक है?
अदरवाइज सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं यूज करते हैं, या फिर कई बार होता है कि हम किसी कस्टम ऑब्जेक्ट को क्यों क्रिएट करें, हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को यूज कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि कोई ऐसे रिक्वायरमेंट है जिसमें आपका अकाउंट और अपॉर्चुनिटी की कैपेबिलिटीज आपको इन्वॉल्व करनी है, तो आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट यूज करिए, ना कि कस्टम ऑब्जेक्ट। तो जनरली यस। कस्टम ऑब्जेक्ट की तरफ मूव। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कंडीशनल होती है कि अगर आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, चाहो तो ना क्रिएट। ठीक है। अब लीड का जो स्टेटस है, अब देखिए जब हम ये कन्वर्ट हो रहा होगा, राइट, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लीड का स्टेटस जो है ये ओपन है। जब हम इसको यस। कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अब लीड का जो स्टेटस है क्वालिफाइड हो चुका है। ठीक है। Congratulations, your lead has been converted। जब अकाउंट ये बना, केशव ये बना, और अपॉर्चुनिटी हमने बोला था कि अपॉर्चुनिटी बनी चाहिए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनी। ठीक। तो ये लीड कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप देखोगे तो लीड में यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन है, वो लीड अब जा चुकी है उससे। वो इन्फॉर्मेशन अब अपने को मिलेगी अकाउंट्स के। ओके, वहां से रिमूव हो जाएगी। हाँ, वो चूंकि अब लीड लीड रही नहीं ना, वो तो कन्वर्ट हो, लीड कन्वर्ट हो चुकी है, राइट। ये अकाउंट बन गया। अब आप इस अकाउंट के अंदर अगर जाओ, ये कॉन्टैक्ट बना है, राइट। कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट में एक अपॉर्चुनिटी ओके। है। अभी देखिए, वो जो अपॉर्चुनिटी बनी थी, राइट, वो इस यस। कैंपेन से आके कनेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो लीड था वो इस कैंपेन के थ्रू ही आया, राइट। यस। क्योंकि रिमेम्बर कि जब हम ये कैंपेन बनाया था तो हमने कैंपेन मेंबर ऐड किया था, कैंपेन मेंबर में हमने एक लीड डाला था यहाँ पे, राइट। तो लीड यहाँ से भी हट गई। नहीं, यहाँ पे देखिए, आप अभी भी देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स अभी भी 1 है। यस। ठीक है, क्योंकि वो जो लीड कन्वर्ट हो गई है, वो ऐसा तो है नहीं कि वो डेटा चला गया है। लीड कन्वर्ट होकर के हमारी अकाउंट में बन गई, लेकिन अभी भी मेंबर तो है ना हम कैंपेन का, ओके। राइट। कैंपेन का तो मेंबर रहेगा ही, हमेशा ही रहेगा, क्योंकि वो उसी कैंपेन के थ्रू ही आया था। या पहले अगर कभी देखना हो भाई कॉल्स राइट, में। अगर हिस्टोरिकल डेटा देखना हो कि लेट्स से मुझे 2 साल बाद देखना हो कि भाई हमने कैंपेन चलाया था, उस कैंपेन हाँ। से कितने लोग आए थे हमारे पास, जरा देखना डेटा तो हाँ। तुरंत एडमिन जाएगा, कैंपेन खोलेगा, उसके नीचे कैंपेन मेंबर चेक कर लेगा, और उन कैंपेन्स में से कितनी हमारी अपॉर्चुनिटीज बनी थी, कितनी अपॉर्चुनिटीज नहीं बनी थी, तो वो सारी चीजें अपॉर्चुनिटी लिस्ट में स्टोर होगी। यस। अपॉर्चुनिटी मीन्स ये कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर। नहीं, अपॉर्चुनिटी मींस कि आप पोटेंशियल कस्टमर बोल सकते हो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कस्टमर है, राइट। ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये तो ऑलरेडी हमारा एक कस्टमर था, उसकी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप क्वेरी पे जाओ, ये देखिए यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट में आपका दिखा रहा है, राइट। ये इस कस्टमर की अपॉर्चुनिटी है। तो वो वहां पे कैंपेन पे शो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ये जो कॉन्टैक्ट है, ये आया उसी कैंपेन से है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फील्ड है, प्राइमरी कैंपेन सोर्स, राइट। जब हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे लीड को, तो हमने हाँ तो हाँ। कहीं पे भी ये फील्ड को फिल किया नहीं था, राइट। ये फिर भी फिल हो चुकी है। तो वो सेल्सफोर्स बैकएंड बैकएंड में अपने आप इसको हैंडल करता है, बट और ये सब हैंडल हो रहा है वो जो कन्वर्ट बट लीड वाला जो बटन था ना लीड ऑब्जेक्ट पे, ओके। उस बटन से हो रहा है, उस बटन के पीछे सारा लॉजिक चल रहा है। पर कई बार ऐसा रिक्वायरमेंट आता है क्लाइंट का, वो उनकी कुछ अलग डिमांड होती है कि लीड जब कन्वर्ट हो रहा हो तो हमारा कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट है वो भी क्रिएट होना चाहिए, ऐसा ऐसा करके। अच्छा, उन केस में शायद कस्टम कोड लिखना होगा। राइट, तो उस केस में जो कन्वर्ट लीड वाला जो स्टैंडर्ड बटन है उसको हम रिप्लेस करते हैं अपने कस्टम कोड से, और उसके बाद फिर हम अपने अकॉर्डिंग जो भी काम हम करना होता है वो करते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे इस पूरे सर्कल को देखो जो अभी हमने जो इतनी देर बात की है, राइट, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, एक कंपनी है, वो कंपनी अपना सारा डेटा जो है वो हैंडल कर रही है सेल्सफोर्स पे, राइट। हम्म। और सेल्सफोर्स में वो डेटा हैंडल कर रही है, मतलब कि वो कोई
कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे वो सारा डेटा स्टोर कर रही है, जैसे आपका वेयर हाउस होता है, जैसे गोदाम हो गया, राइट? तो आप यस, गोदाम में गए, गोदाम में जाके कुछ भी चीजों को स्टोर कर, वैसे ही सेल्स फोर्स में वो सारी चीजों को स्टोर करा रहा है। अब गोदाम और सेल्स फोर्स में तो फर्क होगा कि गोदाम तो कोई ऑटोमेशन कर नहीं रहा है, यस, राइट? ऑटोमेशन सेल्स फोर्स है। तो यस, वही सेम चीज में टेक्निकल टर्म है, यूजर अपना सारा इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पे डाल डाल रहा है। तो वो प्लेटफॉर्म के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है कि हम उनके बिजनेस को ऑटोमेट कर रहे हैं कि लेट्स से जैसे ही कस्टमर आ गया, उसके पास कोई मेल आ जाए, ठीक है, उसके बाद लेट्स से कि जब उसका प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला हो तो उसके पास कोई रिमाइंडर मेल नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाए, जैसे कैसे हम लोग का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला होता है तो मेल आना स्टार्ट हो जाता है, एक दिन यस, बचा है, 2 दिन बचा है, 1 दिन बचा है, तो अब ये सब कोई बंदा बैठ कर करेगा, इससे अच्छा है कि सिस्टम आपका काम सारा मैनुअली ऑटोमेटिकली कर दूँ, राइट? तो यस, अब सेल्सफोर्स में ऑटोमेशन के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, बट ठीक है, हम आएंगे तो वो डिटेल में भी नहीं चलते हैं। ठीक है, अब तो आप देखो सारा चीज स्टोर हुआ है हमारा सेल्सफोर्स में, राइट? अब ये तो एक छोटा सा मॉड्यूल हो गया जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि छोटा सा कैंपेन चला कर और इस अच्छा, अब इसको अगर आप बहुत बड़े लेवल पे देखो तो आपके पास हो सकता है बहुत सारे कस्टम ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स आप यूज कर रहे हो, लेकिन मे बी कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होंगे जो शायद आपके सेल्स के बंदे नहीं यूज कर रहे होंगे, कुछ सिर्फ सर्विस के बंदे यूज कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल केस ऑब्जेक्ट है, केस ऑब्जेक्ट सेल्स के बंदे जो होंगे वो केस ऑब्जेक्ट पे काम क्या ही करेंगे, केस तो जनरली कोई कंप्लेन रेज होती है उसके लिए होता है, ठीक है। यस, सेल्स वाले बंदे को कोई मतलब नहीं कंप्लेन रेज हुई है नहीं हुई है, उसके लिए सर्विस की टीम बैठी हुई है पीछे, यस, सपोर्ट टीम। सपोर्ट टीम बैठी हुई है पीछे। तो अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करेगा, वो सेल्स को इतनी सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाए, सर्विस टीम को इतनी सारी चीजें देखने सपोर्ट कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके अंदर हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, एप्लीकेशन है, ठीक है भाई, काम करते हैं, अपने इस पूरी चीजों को सेग्रीगेट कर देते हैं जरूरत के हिसाब से मल्टीपल एप्लीकेशन, राइट? यस, अब यहाँ पे ये भी खुल के आ रहा है ना, ऐप लॉन्चर, बेसिकली ये सारे हमारे एप्लीकेशन से, देखो ऐप, ये सारे हमारे एप्लीकेशन से, सर्विस एप्लीकेशन है, ये कुछ सेल्सफोर्स से स्टैंडर्ड बना के दिए हैं, जो एक बिजनेस स्टैंडर्ड के तौर पे देखा जाए तो यूज हो सकता है या यूज किया जाता है, ठीक है। यस, कि हर कंपनी में मैक्सिमम जगह अगर वो सर्विस बेस्ड कंपनी है तो सर्विस है, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उसमें सेल्स और सर्विस दोनों एप्लीकेशन होगा, ठीक है। मार्केटिंग का अपना खुद का एप्लीकेशन होगा, चैटर हमारा इंटरनल यूजर्स जो होते हैं आपस में कोलैबोरेट करने के लिए बेसिकली चैटर का के टैब्स होते हैं एप्लीकेशन, राइट? सो अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर अलग अलग टैब्स है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोग सेल्स टैब पे हैं, राइट? मींस सेल्स सॉरी टैब में सेल्स एप्लीकेशन पे है, सेल्स एप्लीकेशन। राइट? तो अब इस एप्लीकेशन में हमने कुछ कुछ डाल दिया, राइट? अगर हम सर्विस पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट टैब्स होंगे, राइट? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वो वहाँ पे भी देखिए सिर्फ कुछ ही है, सर्विस को कोई मतलब नहीं था कि वो रिपोर्ट्स वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स शायद सारे थे वहाँ, राइट? उसको तो सिर्फ केस से मतलब है, क्या केस जनरेट हुआ है, राइट? यस, क्या इसके अगेंस्ट हुआ है, कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट ही होगा केस जिसके से होगा, राइट? या फिर यस, अकाउंट यस, होगा, कुछ फाइल्स होंगे शायद। तो देखिए फर्स्ट वेरी बेसिक चीज हो जाती है हमारे पास एक एप्लीकेशन सिस्टम में क्रिएट करना, ठीक है। अच्छा, ये यस, सिस्टम एप्लीकेशन क्रिएट हो गया, उसके बाद क्या? अब उसके बाद हम ये टैब चाहिए, राइट? जिस चीज का एक्सेस देना है हमें, रखना है वो एप्लीकेशन में। अब उसके टैब्स के लिए पहले तो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, अगर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है तो आप डायरेक्टली टैब जाके लगा दें, राइट? बट अगर कस्टम ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए पहले कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट? उसके बाद उसका टैब बनाओगे। यस, तो सबसे पहले मीन्स एप्लीकेशन आ गया सिस्टम में, एप्लीकेशन के बाद हमारे पास कस्टम ऑब्जेक्ट्स आ गए, राइट? अब ऑब्जेक्ट तो बन गया, और ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास टैब्स बन गए। बेसिकली टैब का पर्पस क्या हुआ? टैब का पर्पस हुआ कि उस ऑब्जेक्ट की आप डेटा देख सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पे अकाउंट है, अकाउंट के अंदर हमें पता है कि हमारा ये डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर ये टैब रहे ही नहीं यहाँ पे, राइट? तो यस, आप इस डेटा को कैसे देख पाओगे?
अगर आप टेक्निकल बंदे हो, आपको सॉकेट क्वेरी पता है, ठीक है, आप बैकएंड में जाओगे डेवलपर कंसोल में, सॉकेट क्वेरी लिखा और ये डेटा आपको आ जाए। यस यस। वो तो आप डेवलपर हो इसलिए आपको पता है ना, जो सामने जो फ्रंट एंड बंदा है उसको कोई मतलब नहीं है डेवलपर कंसोल क्या होता है, फर्स्ट क्लास क्या होता या एंड यूजर को नहीं पता। है, एंड यूजर को कोई मतलब नहीं। यस। ज्यादा से ज्यादा से कुछ इशू आएगा वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास आएगा कि भाई ये कुछ तो दे रिजल्ट है, ये देखो आप सब। यस। अभी एप्लीकेशन, अब ये टैब्स इंपॉर्टेंट है अगर हमारे, इसलिए नहीं कि टैब्स हम बनाए बनाए, मान लीजिए कि कॉन्टैक्ट है, राइट, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कॉन्टैक्ट के टैब बनाओ, क्योंकि अगर आपका कॉन्टैक्ट और अकाउंट का रिलेशन है तो आप हो सकता है कॉन्टैक्ट, आप चाहते हो कि यूजर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पे जाए रेदर कि वो इंडिविजुअल अकाउंट पे जाए और फिर वहां से देखे कि उससे एसोसिएटेड कौन कौन से कॉन्टैक्ट। ओके। तो इससे हमारे पास ये टैब्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, एप्लीकेशन हो अब गई, कस्टम ऑब्जेक्ट हो गया, कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास कस्टम टैब्स हो गए। अब मल्टीपल इंफॉर्मेशन विद कस्टमर की, है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, वो सब सेल्सफोर्स से हमें स्टैंडर्ड दे दिया है, बट हमारे पास और भी जो इंफॉर्मेशन है जो हम स्टोर करना चाहते हैं, जैसे क्या स्किल सेट है, कहाँ रहता है बंदा, वो सब एड्रेस एड्रेस है, बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी जो यहाँ पे हमें नहीं मिलेगी। अब उसके लिए हम, हमारे पास ऑप्शन है कस्टम फील्ड्स क्रिएट करने के लिए, ओके। राइट। कस्टम फील्ड के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं किसी कस्टम ऑब्जेक्ट, और वो कस्टम ऑब्जेक्ट एक ग्रुप बन करके हमारा एक एप्लीकेशन है। ये क्लियर है इतना छोटा सा बेसिक। और ये सर्विस और सेल्स क्लाउड डिफरेंट है यार, हाँ, राइट? अभी क्लाउड पे भूल जाइए, अभी अभी सिर्फ आप उतने पे फोकस कीजिए जितना हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ओके वो ओके। सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको बेस क्लियर होगा ना तो सेल्स सर्विस ये सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। ओके ओके। स्टार्टिंग में मैंने बस एक आपको बेसिक थ्योरेटिकल चीज बस बताई, एक कंपनी का एग्जांपल लेकर कन्वर्ट होता है, फिर सेल्स के बाद फिर सर्विस की चीजें आती हैं, तो वो बहुत यस। ऐसे, तो फिर बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक एक स्टेप वाइज चलते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें कवर हो जाएंगी, और चूंकि आपको ऑलरेडी डेवलपमेंट का आइडिया है तो फिर इसमें बहुत ज्यादा चीजें आप रिलेट कर पाओगे चीजें। बस यार, बेसिक बेसिक में ही थोड़ा टाइम लगेगा बस। राइट, तो अब आपको पता है कि एप्लीकेशन क्या है, राइट, ऑब्जेक्ट क्या है, कस्टम फील्ड्स क्या होती है। अब ऑब्जेक्ट टैब्स पे, टैब पे क्लिक करो तो ये हमारे पास एक रिकॉर्ड है, राइट, हमारे पास मल्टीपल कॉन्टैक्ट या होंगे तो हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो गए। यस यस। बट मेरे क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे इसलिए, क्योंकि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन पूछो, अगर आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो उससे चीज क्या होगी, ठीक है। या कोई तो होता है तो इंटरप्ट कर लो, या फिर अगर मैं कोई चीज बता रहा हूँ तो वो चीज खत्म हो जाए उसके बाद आप तुरंत पूछो, या फिर बीच में इंटरप्ट कर दो। यस यस। अम, ठीक है। अभी, अब अगर ये चीज बेसिक पता है हो गई आपको, तो अब वो वाला जो डॉक्यूमेंट था, अ, तो अभी इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग कर रहे हैं, राइट, ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। वो एक, यस। वो बोलिंग है कि नहीं, मैंने जिस कंपनी का था ये प्रोजेक्ट, एक्चुअली जिस कंपनी ने एप्लीकेट कर रहा ओके। है, ठीक है। अभी आप देखो, जैसे हमारे पास कोर्स हुआ, राइट, ये कोर्स हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट हो गया, फिर उसके अंदर कोर्स से रिलेटेड हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए। बेसिकली अभी आप एक तरह से इस पूरे का एडमिन सेट कर रहा है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके हमारे टैब्स होंगे, राइट, ओके। उसमें क्या क्या फील्ड्स होंगी हमारी, क्या रिलेशनशिप होगा फील्ड्स, रिलेशनशिप का मैं फिर से बताऊंगा आपको, बट ये जो रिलेशनशिप ये फील्ड है ना, इनको मत बनाना, ठीक है। इन फील्ड्स के अलावा ये जैसे लुकअप है, ये रिलेशनशिप है, इन फील्ड्स को मत बनाना, बाकी जितने भी फील्ड्स है ना, आप एक एप्लीकेशन बनाएंगे ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम करके, ओके। उस एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ उन टैब्स को रखिएगा जो टैब्स, जिस ऑब्जेक्ट के टैब्स आप क्रिएट करोगे, ये हम अपने वहाँ पे 6 है, राइट, तो ये सिर्फ, और उस एप्लीकेशन में एक कॉन्टैक्ट भी होगा हमारा, ठीक है,
अकाउंट होगा, यूजर तो यूजर का टैब नहीं होगा, ये तो सेटअप से। यस। तो यहाँ पे अब आप इसको फीड प्रिंट बनाने के लिए स्टार्ट कीजिए, जैसा आई नो कि भी आप यस। वर्क फ्रॉम होम और हम वैसे काम वर्क फ्रॉम होम के ऑफिस जाते हैं? ये ऑफिस जाता हूँ बस, नॉट ज्यादा दूर नहीं है इधर से। अच्छा अच्छा, किधर है, किधर पे ऑफिस?